صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفد کے ہمراہ بریڈ فورڈ کونسل احمد چودھری الطاف حسین اور کونسلر کامران حسین کے علاوہ کمیونٹی رہنماؤں نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے دورہ یورپ کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ بولے کہ حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف پلیٹ فارم پر آواز بلند کریں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وقار بابر کی یہ رپورٹ۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اپنے مشیر چودھری محمد مالک اور درینہ ساتھی شیخ ارشد برکی کے ہمراہ بریڈ فورڈ کونسل پہنچے، جہاں پر میزبان چودھری الطاف حسین اور کونسلر کامران حسین کے علاوہ کمیونٹی رہنماؤں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ تقریب میں ویسٹ یارک شائر کے مختلف علاقوں سے کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے دورہ برطانیہ اور یورپ کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا۔ Article 370 and 35A was abrogated, which means that the special status of occupied Kashmir was finished. And since then, India has taken certain steps just to finish the Kashmir issue. And mainly, they have changed the demography of occupied Kashmir. کمیونٹی رہنماؤں اور کونسلرز نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور صدر آزاد کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدمات پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں یاسین ملک کی حق میں عالمی برادری کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے صدر آزاد کشمیر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تقریب سے تحریک حق خود ارادیت کے چیئرمین راجہ نجابت حسین، سابق لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق، سابق لارڈ میئر چودھری رنگزیب، سابق مشیر چودھری حق نواز، لیڈ سے کونسلر گوہر الماس خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، distinguished ladies and gentlemen, Councillor Kamran Hussain, thank you very much for inviting me to say welcome to our Honorable President of Azad Kashmir in Bradford. On behalf of British Kashmiris and Jammu Kashmir Self-Determination Movement International team, I would like to welcome him in UK. Excellency President Azad ریاست جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور مجھے اس چیز میں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک نہ صرف سٹی آف کلچر میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، بلکہ دس از بریڈفورڈ از فار کشمیری اینڈ پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی، دس از دی کیپٹل آف کشمیری اینڈ ڈائسپورا کمیونٹی. Among friends today, among people who have worked incredibly hard and selflessly for the cause of Kashmir. Certainly in the room next door in the council chamber not so long ago we did support a motion shouting out about the human rights abuses perpetrated in Kashmir, occupied Kashmir, and that was successful. It received cross-party support. Bradford is a place of friends for the people of Kashmir. They are demanding this birthright, which is self-determination, and that's what all they need. And the issues that we have here today, it hasn't stemmed overnight. Let's be absolutely clear. The issues here have been going on for decades and decades, and unfortunately, somehow there's a little issue when, Kashmir becomes a talking shop. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور دیگر شخصیات نے دورہ یورپ اور کشمیر کوز کے لیے کوششوں کو سراہا۔ بنیادی طور پہ جو بڑے میرے ایونٹ ہیں، ایک 12 تاریخ کو میں نے تمام پاکستانی کشمیری جو کونسلرز ہیں ان کو دعوت دی ہے ادھر برمنگھم میں 1 بجے، ان سے میں مل کے ان کو گراس روٹ سے اس کو اوپر لے کر جائیں، اور 12 تاریخ کو کونسلرز کی میٹنگ کے بعد برسل جا رہا ہوں، اور وہاں پر میں وہ کونسلر سے بھی ملوں گا، اور وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں جو فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے بھی ملوں گا، اور میں وہاں پہ ان سے یہ کہوں گا چونکہ یاسین ملک صاحب کی جو اپیل ہے اس میں صرف 10-11 دن رہ گئے ہیں، سو آئی ہیو ٹو بی فاسٹ. ہمارے دعوت پہ وہ بریڈفورڈ سٹی کونسل میں تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ بیرسٹر صاحب جیسا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں قابل لیڈر جو کہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، جس طریقے سے وہ کشمیر کا کیس اجاگر کر رہے ہیں اور کشمیر کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہسٹری ہے بیہائنڈ بیرسٹر سلطان محمود دیٹ ہی ہیز بین کمپیننگ فار کشمیر فار پاسٹ آئی تھنک ڈیکیڈز. تو آج جتنے بھی ہم کشمیری ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مین پوائنٹ ہے جس کے لیے بیرسٹر صاحب آئے ہیں وہ یاسین ملک صاحب کی
جو حالیہ گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو مل جل کر بیرسٹر صاحب کی آواز میں آواز شامل کرنی چاہیے، اور ورلڈ کمیونٹی اور ان پرٹیکولر برٹش پارلیمنٹ اینڈ یورپین پارلیمنٹ پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ وہ یاسین ملک صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ایکشن لیں. And at the same time, they're here to show their solidarity and support to the British Kashmiri diaspora that currently resides in Bradford. And at the same time, I think Bradford is blessed because we are the only city in the entire country that has recently named a park after Kashmir, and I think it's a great honour to have Barrister Sultan Mahmood here as the President of Kashmir. کشمیر کا ایشو جو ہے ہم نے اجاگر کیا ہے. کشمیر کا ایشو جو ہے ایک گلوبل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے, اور یہ جو ایشو ہے بریڈ فورڈ کے لیے بہت اہم ہے. Community members welcoming the president of Azad Kashmir, and it gives us huge pride and a great joy to actually welcome someone to our city to share our concerns and once again remind people what we are here to do, and it is about human rights, and we just really feel privileged and honoured to be given such an opportunity in Bradford to welcome the president of Azad Kashmir. تقریب میں سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ڈڈیال خالد بلور, کونسلر سبیحہ خان, کونسلر فوزیہ شاہین, کونسلر محمد عمران, کونسلر ارشد حسین, سابق کونسلر صوفی محمد امین, چودھری ماجد علی, چودھری ابرار, چودھری محمد یعقوب سمیت کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال بارے صدر آزاد کشمیر سے آگاہی حاصل کی. آخر میں بریڈ فورڈ کو کلچرل سٹی برائے سال 2025 کا اعزاز ملنے کی خوشی میں صدر آزاد کشمیر کو کلچرل سٹی کا بیج بھی لگایا گیا. وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈ فورڈ. انٹرنیشنل لائرز کلب اور انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن کے اشتراک سے پاکستان میں لیگل ریفارمز کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام ہوا, جس کے مہمان خصوصی سابق ممبر پاکستان کونسل ضیاء عوان, صدارت ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد عوان نے کی. شرکا نے بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف قرارداد پیش کی, جس کو شرکا نے منظور کر لیا ہے. تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں لیگل ریفارمز کے حوالے سے منعقدہ سیمینار کا اہتمام ایسٹ لندن میں انٹرنیشنل لائرز کلب اور انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے اشتراک سے کیا گیا. تقریب کے مہمانان خصوصی ضیاء عوان, سابق ممبر پاکستان کونسل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد عوان تھے. اس موقع پر چیئرمین IBPC رضوان سلہریہ, چیئرمین ILCU کے غلام مصطفیٰ خواجہ, کونسلر معظم سندھو, شعیب بھٹل, عامر خان, حافظ غنی اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا. مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی نظام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. بار کونسلز کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بروقت اور جلد انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان میں وکلاء کے حقوق کے لیے مزید بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سیمینار میں عامر خان نے بھارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف قرارداد پیش کی, جس کو شرکا نے بھرپور تائید کے ساتھ منظور کیا. سیمینار کے مہمان خصوصی ضیاء عوان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کا یہ سیمینار پاکستان کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرے گا, اور اب ہمیں بھی پاکستان میں لوگوں کو بروقت اور جلدی انصاف دینے کے لیے پاکستان میں عدالتی نظام میں مزید اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. جب میں نے ان کی باتیں ساری سنی ہیں انٹرنیشنل لائرز کلب کی, تو یہ بڑا جہاد کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہمت دے, اور میری ان کے ساتھ دعائیں ہیں. جو ان کے مشنز ہیں کہ اپنے کنٹری میں اور یہاں پہ بھی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جو تبدیلیاں لانے کے لیے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کس طرح سے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو پاکستان میں جوڈیشری کو اپلفٹ کرنے میں اور ہمارے لیگل پروفیشن کو آگے لے جانے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, وہ بڑا تکلیف دہ تھا, لیکن بڑا انکریجنگ بھی تھا کہ دیر آر پیپل who want to change, who want to bring some good changes in Pakistan. ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک خالد عوان نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو جلدی اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اس حوالے سے وکلاء کے حقوق کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. میں نے جو جذبہ دیکھا یہاں پر, جو کہ انٹرنیشنل لائرز کلب UK نے پاکستان کا درد رکھتے ہیں, پاکستان میں جوڈیشری کو سپیڈی فیصلے کرنے چاہیے, پاکستان کی بار ایسوسیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, پاکستان میں جو وکلاء کا مرڈر ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے اور کیسوں کو کیسے لوگوں کو انصاف دلایا جائے,
और वकला की वेलफेयर के लिए इक़दामात किए जाएं। मैं इनके इस इक़दाम को सराहता हूँ। जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके इमरान पानावाला ने कहा कि आज पाकिस्तान में अदलिया के ऊपर एक डेडलॉक आया हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जो कई बरसों से ज़ेर इल्तवा केसों को निपटाने में अहम किरदार अदा करें। हमारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो हम यहाँ पर जिस तरीके से हम अपने यूके के सिस्टम को देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी तरह का कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान में हो ताकि ये बैकलॉग जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनको पूरा एक पायलट स्कीम देंगे, किस तरीके से वो जजेस को ट्रेन करें और किस तरीके से वो अपने केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम कंडेम्ड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये बात की और हम उसको रेजोल्यूशन पास की। उसके साथ साथ पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम जिसमें प्रॉब्लम है, प्रोसिक्यूशन है, दूसरी है उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो डिटेल डिस्कशन हुई और जो उनकी प्रोग्रेस है और उसमें जो भी हम बेहतरी ला सकते हैं वो यहाँ के लॉयर वहाँ के लॉयर डिस्कस किया। आज का जो प्रोग्राम था इसमें पाकिस्तान की जो जुडिशल एकेडमी के जो इंस्ट्रक्टर है ज़िया साहब तशरीफ़ फरमा हुए और इसमें पाकिस्तान से जो अटॉर्नी जनरल है उसमें इस वक्त आज हमने जो है पाकिस्तान यूके में बैठकर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और यहाँ का सिस्टम जो है वो कंपेयर किया है और उसमें बहुत सारी खूबियों खामियों का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी या सीनियर वकला या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ चेंज करने की ताकत रखते हैं या अहमियत रखते हैं, उनको जब भी यूके में आते हैं हम उनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और हम उनका प्लेटफॉर्म अपना मुहैया इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो हमारी आवाज़ बने। पाकिस्तान जो कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को हमेशा ज़रूरत होती है डेवलप कंट्रीज़ के सिस्टम को अडॉप्ट करने की, उसमें देख के अपने लूप होल्स को कवर करने की, अपने अंदर कमज़ोरियों को दूर करने की। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉयर क्लब के प्लेटफॉर्म पे हमने डिस्कशंस की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, सीनियर वकील पाकिस्तान के साबका पाकिस्तान बार के मेंबर थे ज़िया अवान और खालिद अवान साहब। तो हमारा मकसद यही था कि उनको सजेशंस दें, उनसे यूके के और पाकिस्तान के जो लीगल फैटर्निटी है उनको आपस में लाइजन किया जाए ताकि एक सिस्टम के अंदर बेहतरी आ सके। सेमिनार के आखिर में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कारपोरेशन की जानब से ज़िया अवान और खालिद अवान को एजाजी मेंबरशिप के बैज लगाए गए। सेमिनार में शरीक होने वाले मेहमानान खसूसी को आखिर में यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक का लंदन में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दफ्तर का दौरा। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के जारी फलाही कामों में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। जबकि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने हारिस अतीक और दीगर शख्सियात को पाकिस्तान में जारी फलाही मंसूबों से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक और यूके PCCI के चेयरमैन सरदार शफकत ने मगरबी लंदन के इलाके हुंसलो में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के दफ्तर का दौरा किया और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ फलाही मनसूबों की तफसीलात से आगाही हासिल करते हुए चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद और उनकी पूरी टीम की खिदमात को सराहा। इस मौके पर हारिस अतीक को अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया के मुख्तलिफ शोबों और इनमें काम करने वाले मर्दों खवातीन से मुतारफ करवाया गया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारी और मुस्तकबिल करीब के मंसूबों के हवाले से तफसीलात बताई गई। यूके PCCI के चेयरमैन सरदार शफकत ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक से दो तरफा सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी और खदशात समेत दिलचस्पी पर तफसीलात से आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक ने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की पाकिस्तान में फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा कि लंदन और बरतानिया भर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के वतन से मुतल्लिक जज्बात को देखकर बेपनाह खुशी हुई है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को कि जिस तरह वो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को चला रहे हैं। इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिक वर्क, उसकी जो हेड ऑफिस आज हमने विजिट किया और जिस तरह उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसके अंदर इस्तकामत भी दे और इनके प्रोजेक्ट्स में मज़ीद बरकत भी अता फरमाए। लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से जब मैंने उसको विजिट किया तो इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर भरपूर ताउन भी करेगा उनके साथ। हमारे इनके लाहौर ऑफिस के साथ वैसे ही बहुत अच्छा रब्ता था, बट यहाँ पे आके कहते हैं ना कि आपका विजन मज़ीद खुल गया और जिस तरह इनकी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड। मैं हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये एंड वी आर वेरी होपफुल कि जैसे ये पाकिस्तान में मैं वापस जाऊंगा तो इंशाल्लाह इनके साथ हमारे MOUs को भी हम साइन करने की एक पोजीशन में आएंगे, इनके साथ MOU करना चाहेंगे। उसके बाद जो इनको मजीद जितनी सपोर्ट हो सकेगी इंशाल्लाह वो करेंगे। यूके PCCI के चेयरमैन सरदार शफकत, हौनिस्लो जामिया मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीकुर रहमान, अफजल कियानी, वजाहत अली खान और दीगर शुरका ने इस मौके पर हारिस अतीक का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की कारोबारी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर वतन अजीज
मराकीज में सरमायाकारी पर काम करेंगे। पहले से जिनका इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान में जाके कोई फैक्ट्रीज या कुछ तरह के कारखाने लगाएं, अब देखते हैं कि नई गवर्नमेंट ने उनके लिए उन पॉलिसीज़ में कोई चीज़ चेंजिंग की है। अब जैसे हम सुनते आए हैं कि नई गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंपोर्ट चीज़ों के ऊपर जो बैन लगा दिया है, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होना शुरू हो गया है। लेकिन हम समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट को बेहतर हालात करे, मुल्क के लिए कुछ ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए कुछ उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ रखें ताकि लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकें। हारिस अतीक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के, इनके शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार मुस्तफ़ा की दावा पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया, और यहाँ जो कम्युनिटी हमारी इकट्ठी हुई, इनसे मुलाकात भी हुई। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल पाकिस्तान रखते हैं, और मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का जो काम है पाकिस्तान में वो एक नुमाया काम है। हमारा अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल जो लाहौर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, जिसकी सरपरस्ती भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से मुकामी होटल में मजीद तफसीली तबादला ख्याल और दोहराने का पूर्वकार इंतजाम किया गया, जहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता मुकामी सहाफ़ियों समेत समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान में फलाही कामों के हवाले से मजीद संजीदा इक़दामात पर इजहार ख्याल किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। हुकूमत पाकिस्तान ने अचानक सैकड़ों अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तानी ताजरों को बड़ा झटका दिया है। इंपोर्ट बिल कम करने के लिए ज़रूरी है कि लोकल ताजरों को सहूलियात मुहैया की जाएं ताकि वे इंपोर्ट करने वाली अशिया पाकिस्तान में ही बना सकें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हारिस अतीक और यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार शफकत ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से बातचीत की है। क्या गुफ्तगू की गई, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हारिस अतीक साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से यहाँ लंदन दौरे पे आए हुए हैं। उनके साथ जो है वो सरदार शफकत साहब मौजूद हैं, जो कि यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। इनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है, इन्होंने आते साथ ही जो है वो बहुत सारी जो है वो इम्पोर्ट गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो सके। क्या इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी हजरात हैं, क्या उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनसे पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं समझता हूँ कि एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप अखराजात उतनी होने चाहिए जितनी आपकी इनकम है। इस टाइम पे आपकी इनकम थोड़ी है। इनकम का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस और आपकी जो इंपोर्ट है, जो आपकी ख़रीदारी है वो ज़्यादा है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो गैप है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल ऑलरेडी बना हुआ है, वो मज़ीद बनता जाएगा। हमने जैसे इस हुकूमत ने अपना चार्ज संभाला, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुश्किल हालात में हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। हुकूमत ने उन मुश्किल फ़ैसलों में से, अब देखें पाकिस्तान को इस टाइम पर चॉकलेट की इम्पोर्टेड की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इम्पोर्टेड मेकअप की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस टाइम पर खुद मुख्तार होने की ज़रूरत है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनने की सलाहियत है उसके अंदर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हुए इन लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने तो डिसीजन को सपोर्ट किया, बट इसके साथ साथ हुकूमत को और बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे। हम लोग एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में रहते हैं, एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है दुनिया में, आप WTOs और डिफरेंट ट्रेड बॉडीज़ के साथ सिग्नेटरी भी हैं। हमने उसको भी देखना कि हम कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी ना करें किसी तौर पर। लेकिन हारिस साहब एकदम जो है वो इस तरह पाबंदी लगा देना रातों रात, क्या समझते नहीं बहुत सारी बिजनेस डील्स हो रही होती हैं, बहुत सारे ज़ाहिर है पैसे की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इससे एकदम बिजनेसमैन का एतमाद भी खराब होता है। देखिए मुश्किल हालात है, मैंने आपको पहले ही बताया ये ग्लोबल क्राइसिस है और पाकिस्तान कुछ ज़्यादा इस चीज़ को इसलिए फेस कर रहा है कि पाकिस्तान एक मुश्किल खित्ते के अंदर भी है और मुश्किल माशी सूरत हाल का भी एक सामना है। तो उसके अंदर से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तब होगा जब चार्ट ऑफ इकॉनमी होगी, जब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड बैठेंगे और एक इकॉनमी के ऊपर एक चार्टर करेंगे। हम मिसाके जमहूरियत तो सुनते भी आए हैं, मिसाके जमहूरियत का मज़र देख भी रहे हैं कि वही दो पार्टियां जो पिछले कई दहाइयों में आपस में एक दूसरे की दस्तों गिरबान थी, आज मिल के हुकूमत कर रही है। तो क्या क्यों नहीं एक मिसाके मैशियत भी हो सकता। तो जब तक मिसाके मैशियत नहीं होगा, ये इस तरह के मामला चलते रहेंगे। मैं आपसे दोबारा पूछूँ, मैं सरदार शौकत साहब, कैसा इस फैसले को हुकूमत पाकिस्तान को यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया, जो कि एकदम जो है वो सैकड़ों इंपोर्ट गुड्स के ऊपर पाबंदी लग गई? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ा रैशनल डिसीजन लिया है। कोई भी पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रेस पीरियड देना पड़ता है। स्पेशली जिन लोगों ने, हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई थी, एडवांस प्रोडक्ट बाय की हुई थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, एक प्रोसेस होता है स्पेशली इम्पोर्टर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए। अब जब कोई आप कोई प्रोडक्शन तैयार करवाते हैं तो उसको आप डिपॉजिट देते हैं, उसकी आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर उसका डिलीवरी टाइम होता है और उस डिलीवरी टाइम से पहले अगर गवर्नमेंट को इस तरह के फैसले कर लें तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो सरासर लॉस होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा एक रैशनल डिसीजन लिया है, जिससे हमारी रोज़मर्रा जो लोगों के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं, लोग इस बात के ऊपर बड़े परेशान हैं कि अब वो क्या करें।
मैं समझता हूँ कि आइंदा फ्यूचर के लिए ये उन सारे लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ऐसे डिसीजन के लिए कि जिनका पिछली गवर्नमेंट ने आके या जो भी लोगों का जो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करने का, ये चीज़ें भेजने का जो लोगों का इंटरेस्ट था, वो बिल्कुल ही उस पर एक किस्म का ब्लॉक लगा दिया। मेरे ख्याल में इनको रादर दिन के इसको टोटल बैन करने के लिए अगर इसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ वगैरह कोई टैक्सेस बढ़ा देते तो उससे भी मुल्क को फ़ायदा हो सकता था। आप ये बताएं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं उन्हीं चीज़ों को हम पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट करें? बिल्कुल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सर यही बात है ना कि हम सरदार साहब की बात बड़ी वैलिड है और हमने हुकूमत को ऑलरेडी लेटर भी लिख दिया लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि जिस दिन इन्होंने ये इंपोर्ट बैन लगाया है उससे पहले अगर किसी की एलसी ओपन हो चुकी हुई है, कोई किसी का बीएल बन चुका हुआ है और किसी का कोई एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, दैट शुड बी ऑनर्ड। उसको बिल्कुल पाकिस्तान में आने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो जून की बिल हो, बीएल में आए, वो आना चाहिए पाकिस्तान में। तो ये तो एक बात बड़ी श्योर है कि हम इंटरनेशनल अपनी एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑनर ज़रूर करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, साथ ही साथ ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एवरी डिजास्टर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद अब एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में ऑलरेडी कारोबार कर रहे थे, पाकिस्तान में अपना सामान भेज रहे थे, अब उनको एक मार्केट नज़र आ रही है यहाँ पे आके प्रोड्यूस करने की, तो उनको लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने चाहिए। सरदार साहब, पाकिस्तान फुटबॉल बना सकता है जो कि पूरी दुनिया का जो इसका वर्ल्ड कप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान क्यों नहीं ला सकता? क्या वजह है कि फिर भी हमें इंपोर्ट की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है? इसके ऊपर भी मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई है बहुत सारे छोटे मैन्युफैक्चररों के लिए, लेकिन उनके लिए सहूलियात नहीं मुहैया की जाती। जब आप एक लाइसेंस या कोई एक्रेडिटेशन लेने के लिए जाते हैं तो उनको बड़े हर्डल्स आते हैं, इसलिए लोग बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान का जो लोअर एंड पे जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमारे साथ हारिस अतीक साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सरदार शफकत साहब थे, और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट बिल कम करने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनको पाकिस्तान में बनाने के लिए हम जो है वो लोकल ट्रेडर्स की जो है हौसला अफजाई करें। जी। पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम यूनान के ज़ेर एहतमाम एथेंस में शौकत खानम फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मारूफ एंकर पर्सन फ़ख्र आलम और डायरेक्टर एसोसिएट मार्केटिंग शौकत खानम नाइला खान थे। इवेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में शौकत खानम फाउंडेशन आगाही मुहिम के हवाले से तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम यूनान की जानिब से किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एंकर पर्सन फ़ख्र आलम ने शौकत खानम हस्पताल में गुरबा और मुस्तहक अफराद के इलाज मुआवजे के तरीक़ेकार पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस कार्य खैर में अल्लाह की रजा के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये नेकाम सियासत से बालातर होकर सबको करना चाहिए। ये आप इमरान खान के लिए नहीं कर रहे, ये आप अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, ये आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए दो चीजों से मेरी आपसे मैं एक बड़ी शुरू में बात कर देता हूँ कि इनको जरा अलग अलग करने बड़ा जरूरी है। तकरीब से खिताब करते हुए नाइला खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन सैयद अशीर हैदर, अरशाद अहमद भट्ट और ओवरसीज फोरम यूनान के सदर औरंगजेब सप्रा ने मेहमानों को यूनान में खुशामदीद कहते हुए कहा कि यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी इस फलाही अदारे की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। तकरीब में मकामी गुलकारा ने मिली नगमा पेश करके समा बांध दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए फ़ख्र आलम ने कहा कि यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस इवेंट में भरपूर शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम जल्द एथेंस में एक बड़ा इवेंट करेंगे जिसमें यूनानी अफराद को भी मदऊ करके इस फलाही अदारे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। जो नेटवर्किंग इवेंट है ये अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानियों के यहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी उनका जज्बा देख के, उनका जुनून देख के, उनकी मोहब्बत देख के, इंसानियत के साथ और कैंसर के इस कॉज को टैकल करने के लिए उनका कमिटमेंट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आते रहेंगे। शौकत खानम कैंसर अस्पताल चूँकि अब कराची वाला तैयार हो रहा है और अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबकी कि हर इंसान जो है वो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा ज़रूर डाले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए इस मौके पर भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। पाकिस्तान से सऊदी अरब आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। अब तक 4,500 के करीब पाकिस्तानी हुज्जाज कराम मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं, जिन्हें रिहाइशगाहें और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान की वजारत मज़हब अमूर के मुताबिक हज बैतुल्लाह के सादत हासिल करने के लिए पाकिस्तान से खसूसी हज फ्लाइट्स के जरिए आज़मीन हज के काफिले सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, जिनमें से 4,500 के करीब पाकिस्तानी आज़मीन
मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जहां सऊदी और पाकिस्तानी हुकाम उनकी भरपूर इस्तकबाल करने को तैयार हैं। 106 खसूसी हज परवाज़ों के जरिए 81,000 से ज़ायद ताज़मीन को 30 जून तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ारत मसमी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक हुजाज कराम की सहूलत के लिए पाकिस्तानी हज मिशन ने काम शुरू कर दिया है और मक्का मुकरमा समेत मदीना मुनव्वरा में अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ कायम कर दी गई हैं और उन्हें रिहाइशगाहें फराहम करने समेत खाने पानी की सहूलियात भी आरास्ता की जा रही हैं। मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाराबाजी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद ताहिर को 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुना दी गई है। मदीना मुनव्वरा की अदालत के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद ताहिर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के दौरान शोर शराबे और नारेबाजी करने के अलावा वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। याद रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मस्जिद नबवी के हाज़िरी के दौरान सियासी नारेबाजी करने और शोर शराबा करने के इल्ज़ाम में 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती तुर्क पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने दुआ की है कि पाक तुर्क मुआहिदा दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशबख्ती का बाइस बने और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। तुर्क पार्लियामेंटेरियन और चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन ने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की को कामयाब करार देते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि अंकारा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द की मेज़बानी करना तुर्क शहरियों के लिए बाइस फ़ख्र था। दुआ है कि तय पाने वाला मुआहिदा दोनों ममालिक और अवाम के लिए नेक बख्ती का बाइस बने और पाक तुर्क दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो। अली शाहीन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस वफ़द में भी शरीक थे, जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द को ऐवान सदर में ज़ोहराना पेश किया था। अली शाहीन ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया है।